हेलो माय डियर लर्नर्स, माय नेम इज स्वाति एंड आई एम फ्रॉम केजी गेट कंटेंट टीम। आज हम बात करेंगे हमारे गेट 2024 अचीवर्स के साथ, जो शेयर करेंगे अपनी गेट प्रिपरेशन जर्नी और साथ ही वो हमारे आगे आने वाले गेट 25 एस्पिरेंट्स के लिए कुछ अपनी टिप्स शेयर करेंगे। सो आज अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं अश्विन आयंगर, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 267, मार्क्स 69.22 एंड स्कोर 804. So, welcome, Ashwin. And first of all, I would like to congratulate you from the side of the student community and Knowledge Gate. So, Thank you, ma'am. starting with this, I would like to know about you. So, just tell me about yourself, about your schooling and the college. शिवानी उनकी सही में कम करिए। Okay. So, my name is Ashwin Iyengar and I belong to Nagpur. I have done my schooling and everything from here, my engineering also from Nagpur. And I got into electronics engineering, although I wanted to join computer science as you see usually. But actually, I was really interested in computer science, but then I had interest in electronics also. So that's why in the beginning I decided to pursue, electronics as my career, my main thing. But then when I went to electronics, when I started studying electronics, then I realized that, okay, this was the, initial, for example, in computer science, we have computer architecture and digital logic, right? So, that was the thing that I was actually looking for. So when I went into that, learn about the basics of electronics and, how uh, after electronics evolved and it, the computer science field was, so I was actually really want to understand more about computers now. I wanted to understand how this programming, we say that we are programming something, but how that the computer is understanding how this, the things that I learned in electronics is actually being used, to program to, because nowadays whatever we see, it is basically an application of computer science. The computer science community is working hard to, so to the changes that we are seeing today. So that is my whole, that's how I went into electronics, but I Yes. decided to pursue computer science as well. Okay. Okay. So, you get this clarity when you were in third year, fourth year? When I was in my second year. When I was in second year, because from then we started the core electronic subjects, and I genuinely liked my curriculum as well. I wanted to understand electronics as well, but then I developed this interest of also doing computer science. But So you started your preparation from second year only, or when did you start? No, I started little late, but there was, I was not aware exactly what should I do exactly, that I'm in electronics. I tried to switch my subject also in first year. We get that option, but then I was not able to switch it. But then I thought, okay, no problem. I am good. I like electronics as well, so I will just continue learning electronics, and maybe in future I will switch to computer science if required. So that's what my thinking was. So I got this clarity in, I got this clarity from first second year itself, but I was not 100% sure how to do that. I was just thinking that, okay, maybe in future I'll do it. Okay, so how much time you take to like prepare from, because you are from EC and now you are giving your gate exam in CS. So how much CSE. time you took to do that preparation, to understand the CS subjects and prepare for gate exam, especially for gate exam? So, to be frank, we used to have some subjects, some electives, which were related to computer science. For example, we had computer architecture, we had programming and data structure, we had algorithms, we had digital logic was part of our curriculum itself. So we had these things. But then I used to, I used to take some time of my everyday activities, and I used to give that much amount of time. For example, some days, and it was not, it's not like that I studied every day for 2 hours or like that. Sometimes it was more, sometimes it was less. And, and mostly I started preparing in the final year of my engineering. So that was the time actually I, started learning and I started preparing for GIT. Okay, okay. So how Sanchit sir videos helped you in your journey? So
basically I used to, I still remember watching, I had some doubts in TOC, because TOC being a subject where so when I started studying TOC, I went very deep into the concepts of the decidability and undecidability, those concepts. So I went into that. I was not feeling confident because I thought, okay, there's so much to study in this subject. But then I remember I watched Sanchit sir's video where he talked about the syllabus. So this is the basic TOC syllabus, and then he assured that, okay, see, this is the syllabus, but this is the part that you have to focus, or this is the this is the things that you need to focus on. And actually that gave me clarity, because see, we have to study 10 subjects plus mathematics plus aptitude, and it's not easy to remember all of that. If you study 1 2 subjects till 4 subject, it's fine, you remember everything, but when you start the 5th subject, you forget what you read in the first term. So you have to continuously keep on keep on revising. So in that point, I realized, okay, because first time I missed this, second time I went to connect the dots, so I studied more and more, but then I got confused and I was like, "Arey, it's too much for me to handle." So then I remember watching his video, and then he said, "Kini itna hi hai, then you have to do this, then you have to do this." So that gave me a clarity, and that is also very important when you're preparing for this. You have the syllabus is huge, so you have to be very particular about how you are studying it also. So that, and I have seen multiple videos. Mostly I was watching his YouTube videos, and the technical side as well as the non-technical, the motivational ones, or the knowledge informational videos as well. So that helped me a lot. Yeah, okay. So Ashwin, what you think, like for our Gate 25 aspirants who are dedicatedly preparing or who are sincerely preparing for Gate 25, would you recommend Sanchit sir videos and their coaching to them or not? Yes, I would definitely, definitely want people to see, guidance is very important. And because I have seen Sanchit sir's video, I know that he was able to, guide us in how to study. And obviously, he's teaching. He makes everything very easy to understand. So that is one thing. But another thing is that he tells you that, okay, this is the part that you focus, or don't worry, this happens, because it's a long journey. And I was also working when I was preparing, and first I was in electronics department. So, and this is really huge, and at the end of the day, it is just a competitive exam. I know we put so much, because there's a lot of competition everywhere, so it's like we put everything into it. But at the end of the day, it's a competitive exam, so you should know how to write the exam. And obviously you might fail also. This is a competitive exam, someone fails, and then so, but if you get good guidance, then at least that makes it easier for you to go through all that. Right. So I think that is that, and for that, a good teacher is very important. So that is what I think so. Okay. So thank you so much, Ashwin, for sharing your thoughts, for sharing your experience. And also it will help a lot to our Gate 25 aspirants who have to actually start preparing from now. So thank you so much and all the very best to you. So hello my dear learners, my name is Swati and I'm from KG Gate content team. आज हम बात करेंगे हमारे कुछ अचीवर्स के साथ जो अपनी शेयर करेंगे गेट जर्नी, कैसे उन्होंने गेट की तैयारी करी और साथ ही साथ वो हमारे आने वाले गेट 25 एस्पिरेंट्स के लिए कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे। तो आज अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं गुरु प्रसाद, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 300, मार्क्स 68.55 एंड स्कोर 797। ओके, सो वेलकम गुरु प्रसाद। First of all, I would like to congratulate you from the side of the student community and the Knowledge Gate. Okay. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. Starting with this, I would like to know about you. Like, just tell me about yourself and also your schooling and the college. Yeah. First of all, thank you for inviting me, ma'am. My name is Guru Prasad. मैं साउथ इंडिया से कर्नाटक से आता हूँ। मैं अपना स्कूलिंग यहीं से अपना धारवाड़ से किया हूँ, केंद्रीय विद्यालय से। तो मेरा हिंदी थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब मेरे को हिंदी समझ आती है।
ओके। तो मेरा स्कूलिंग होने के बाद मैंने अपना 12th भी यहीं कंप्लीट कर लिया था। पर उस समय मेरे को उतना आइडिया नहीं था, मतलब आईआईटी जेईई उसके बारे में, तो मेरे को आईआईटी में जाने में उतना मन नहीं था। तो मैंने अपना इंजीनियरिंग भी यहीं खत्म कर लिया था। मैं सीईटी दे कर्नाटका का सीईटी दे के इधर इधर ही इंजीनियरिंग कॉलेज खत्म करके यही दिया था। सो खत्म करने के बाद मैं 4th ईयर में मुझको मेरा ब्रदर ने आइडिया दिया कि गेट करके एक एग्जाम है जिससे तुम आईआईटी जा सकते हो, उधर मास्टर्स कर सकते हो। तो उधर से मेरे को मतलब इंटरेस्ट आया गेट लिखना है करके, सो आई स्टार्टेड माय गेट जर्नी फ्रॉम देयर। ओके, ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपको आपके ब्रदर ने आपको बेसिकली हेल्प किया इस गेट के बारे में हाँ, हाँ। बताने में और आपको वो क्लैरिटी मिली कि आपको करना चाहिए। तो इस हाँ। गेट 24 के लिए आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी? सो मेरा लास्ट लास्ट सेमेस्टर में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा 4th ईयर 7th सेमेस्टर मैंने कंप्यूटर मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ। आई आई हैव डन माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो उस समय मेरे को कंप्यूटर साइंस का उतना आइडिया नहीं था। मैंने 7th सेमेस्टर से 2 कंप्यूटर साइंस का इलेक्टिव्स लिया था। तभी मेरे को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आया, तो मैंने मेरे ब्रदर से ऐसा उम, पूछा मतलब कैसा होता है? हुँ। वो अपना इंजीनियरिंग सूरतकल से कंप्लीट किया है, वो मैकेनिकल से था, लेकिन उसने भी सीएस में जाके अभी वो सीनियर डेवलपर है ओरेकल में, सो उसने मुझे गाइडेंस दिया हुँ, कैसे करना है। ओके। सो through his guidance I took like what to do and what not to do through gate. So उसने क्या कहा कि अन अकेडमी करके है, I'll मतलब उसने मेरे को खरीद के दिया अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, तो मैंने उधर से मैंने स्टार्ट किया था मेरा गेट जर्नी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो जैसे आपने अनअकैडमी जॉइन किया, वहाँ संचित सर हाँ, आपको मिले, आपने उनसे पढ़ाई करी। हाँ। तो संचित सर ने कैसे आपको हेल्प किया? किस तरीके से आपकी जर्नी में उनका रोल रहा? वो आप बताइए थोड़ा? बेसिकली मैं जब अन अकेडमी इंस्टॉल किया था, मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसे सर होंगे क्या। तो पहले ही रिकमेंडेशन में इधर संजीत सर का डेटा स्ट्रक्चर्स का वीडियो था, तो मैंने सोचा डेटा स्ट्रक्चर्स मेरा मतलब प्लस पॉइंट था तब तक, तो मैं इससे ही स्टार्ट करूं। सो मैंने स्टार्ट किया डेटा स्ट्रक्चर्स। हुँ, हुँ। सर मुझे बहुत ही इंटरेक्टिव और मतलब इमर्सिव लगे सर, पूरे क्लास को पूरी तरह इंटरेक्टिव रख के मजाक लाइक मतलब फनी वे से इंटरैक्टिव लगते थे, तो मैंने उधर से स्टार्ट किया। फिर मुझे उनका मतलब वो बायो सेक्शन होता है उधर अनअकैडमी में, मैं उनका बायो सेक्शन दिया, उनका देखा तो 10 प्लस इयर्स का उनका एक्सपीरियंस था। उनको सब दे हैड मेनी रैंकर्स अंडर हिम, सो आई हुँ, थॉट इट्स बेटर टू लर्न अंडर हिम, तो मैंने उनसे स्टार्ट किया। फिर मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स उनसे किया, सीओए उनसे किया, ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे किया, लगभग सभी सारे सब्जेक्ट उनसे किया एप्टीट्यूड और मैथ्स के सिवाय। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब गुरुप्रसाद जैसे हमारे आगे आने वाले गेट 25 के एस्पिरेंट्स हैं जो गेट की हुँ। तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे? क्या उन अगर वो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, तो क्या उनको भी संचित सर की कोचिंग हेल्प कर सकती है? मैं तो बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि सर को मतलब आइडिया है कैसा पेपर रहेगा, कैसा वो आपको करेक्टली गाइड कर सकते हैं, बिकॉज़ ही हैज़ एक्सपीरियंस इट एंड मेनी पीपल हैव रैंक्ड अचीव्ड देयर रैंक्स थ्रू हिम। सो I'd recommend others to learn under him, because he has experience and he will guide you through everything. और सर मुझे प्लस पॉइंट ये लगा कि मतलब आप कैसे भी हो, मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैं तो उतना पढ़ाकू नहीं था। सर आपसे इंटरैक्ट करके आपको हौसला बुलंद मतलब ही विल कीप यू मोटिवेटेड थ्रू द जर्नी एंड ही विल से लाइक एवरीवन कैन डू इट, सो यू कैन डू इट टू। सो मैंने उनसे ये सब सीखा, तो इट वाज़ अ ग्रेट जर्नी फॉर मी। ओके, दैट वाज़ वेरी नाइस ऑफ यू कि आपने अपना जो अचीवमेंट किया है उसका आप समझते हैं कि संचित सर ने उसमें आपको हेल्प किया। थैंक यू सो हाँ, मच हाँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस, अपना टाइम देने के लिए, हमारे से बात करने के लिए और साथ ही हमारे आगे आने वाले गेट 25 के एस्पिरेंट्स को भी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि कैसे एक डिफरेंट ब्रांच से आपने सीएस में आए, उसके लिए तैयारी हाँ, करी और यू गेट दिस सच अ गुड रैंक। तो या थैंक यू सो मच गुरुप्रसाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। या थैंक यू फॉर Hello, my dear learners. My name is Swati, or I am from KG Gate Content Team.
आज हम बात करेंगे हमारे कुछ गेट 2024 अचीवर्स के साथ में, जो शेयर करेंगे हमारे साथ अपनी गेट प्रिपरेशन जर्नी और साथ ही आने वाले गेट 25 एस्पिरेंट्स के लिए वो कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे। तो आज अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं इशिता, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 331, मार्क्स 67.88 एंड स्कोर 787. So welcome Ishita. First of all, I would like to congratulate you from the side of the complete student community and the knowledge gate. So हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, and my first question to you is, please tell me about yourself, about your schooling and your college. So I am a 22 pass out. I completed my engineering from JP Noida. So I did when I was doing my engineering. Then at that time during the BTech, I didn't have anything in my mind कि मेरे को MTech करना है. Okay. But it was always कि corporate job करनी है, and you had to get it कि एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए. बट आफ्टर गेटिंग अ जॉब यू रियलाइज दैट नहीं, एक एक्स्ट्रा बूस्ट भी चाहिए होता है. तो फॉर दैट आई थॉट ऑफ डूइंग माय मास्टर्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर गेट. Okay. So that was the point when you decided कि आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए. So when did you start your preparation and from where you did your preparation? मतलब आप कहाँ से आपने करा अपनी तैयारी? So I started my preparation in April 23. Okay. मैंने मार्च में सब्सक्रिप्शन ले लिया था, बट ऑफ अन अकेडमी आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम देयर. एंड मैंने वहां से कुछ ज्यादा मार्च में तो नहीं करी थी तैयारी, बट अप्रैल से आई स्टार्टेड प्रॉपर्ली. तो फ्रॉम अप्रैल आई यूज्ड टू वॉच द लेक्चर्स दैट वर गोइंग इन फॉर माय बैच. अन अकेडमी के कुछ काउंसलर्स ने मुझे बैचेस सजेस्ट किए थे विच वर अकॉर्डिंग टू माय टाइमिंग. तो पहले तो 2-3 महीने मेरे सिर्फ टीओसी में गए बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग अनदर टीचर तब. बट उसके बाद मेरा काफी टाइम निकल गया था, तो जुलाई से आई स्टार्टेड वर्किंग विद संचित सर. तो उनके मैंने लेसन्स, लाइव लेसन्स देखे एंड रिकॉर्डेड लेसन्स देखे, तो विच वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज उनके काफी क्रिस्प होते हैं लेसन्स. Okay. So this is how you met Sanchit sir and you did your preparation with Sanchit sir and his videos and of course our channel Knowledge Gate also. Right. Okay, so that was Yeah. great. So Ishita, like we are going to have our next aspirants who are going to give GATE 2025. So what would you think? अगर कोई बच्चा बहुत seriously prepare कर रहा है इस चीज के लिए, so do you recommend them for Sanchit sir and their coaching and the videos that he used to give to the students? Yes, I do recommend because मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहा था. मतलब I used to complete a topic with संचित सर, फिर हम उसी टॉपिक के क्वेश्चंस करते थे क्लास में. तो साथ के साथ यू कुड टेस्ट इजीली कि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं. एंड इफ यू हैव अ बेसिक ग्रास्प ऑफ द बीटेक कॉन्सेप्ट्स, ऐसा नहीं है कि एमटेक में कुछ बहुत ज्यादा अलग है. इट इज जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एंड वो चीज पे संजय सर बहुत फोकस करते हैं कि अगर आपको बात का मतलब एसेंस समझ में आ रहा है कि नहीं, एंड देन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो आई वुड always recommend him for this. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Ishita, for giving your time and sharing your thoughts and your the experience with us. And it will definitely help our GATE 2025 aspirants also. Thank you so much and all the very best to you. Okay. So hello dear learners. My name is Swati and I am from KG GATE content team. आज हम बात करेंगे हमारे GATE 2024 अचीवर्स के साथ, जो शेयर करेंगे अपनी गेट जर्नी और साथ ही वो हमारे आने वाले GATE 25 एस्पिरेंट्स के लिए कुछ अपनी टिप्स भी शेयर करेंगे. तो आज हम वेलकम करेंगे कौशिक दनपत का, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 337, मार्क्स हैं 67.54 एंड स्कोर है 786. सो वेलकम कौशिक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी एंड द नॉलेज गेट. और अब हम अपनी बात शुरू करते हैं. तो मेरा पहला सवाल है आपसे, यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अपने स्कूल के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताएं. Hello, madam. Thank you for having me in this talk. थैंक यू. So, I am from West Bengal ओके. और मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से की है. मैं मेदिनीपुर कॉलेजिएट स्कूल से पढ़ा हूँ और अभी मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ. बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में. वो है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज. ओके.
ओके, सो कौशिक, लाइक गेट का एग्जाम आपने दिया, सो व्हेन हाँ यू हाँ डिसाइड, कब आपने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे गेट का एग्जाम लिखना चाहिए, और आपने इसकी तैयारी कैसे करी? तो मैं थर्ड ईयर तक कोडिंग करता था और वेब डेवलपमेंट ही करता था। तो कोडिंग करते करते मैं कोडिंग में बहुत अच्छा भी हो गया था। मेरे लीड कोड पे करीब 1000 के करीब क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो मैं कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए बिल्कुल तैयार था। फिर रिसेशन आ गया और मैं एकदम डिमोटिवेट हो गया। फिर मेरे सारे दोस्तों ने बताया कि वो लोग गेट लिखने जा रहे हैं। तो मैं भी गेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। और मैं पहले तो यूट्यूब से ही पढ़ता था। और मैं संचित सर के टीओसी के वीडियोस और डीबीएमएस के फुल प्लेलिस्ट वो सब कंप्लीट कर लिया था। ओके, ओके। तो संचित सर की वीडियोस, जैसे आपने बताया कि आपने संचित सर की वीडियोस देखी, हमारा चैनल जो नॉलेज गेट चैनल है वो आपने फॉलो किया, तो उसने आपको किस हाँ तरीके हाँ से help किया आपकी गेट की जर्नी में, गेट की प्रिपरेशन में? संचित सर के वीडियोस एकदम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थे। लाइक डीबीएमएस का प्लेलिस्ट करीब 100 के आसपास वीडियोस थे। तो वो सब कंप्लीट करने के बाद पूरा सिलेबस ही खत्म हो गया। और टीओसी के वीडियोस वो भी करीब 100 के करीब थे। और उस वीडियो जो भी कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता था। कौशिक, आपकी साइड से कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ जी कौशिक, तो आपने जैसे बताया कि संचित सर की आपने वीडियोस देखी, तो किस तरीके से सर की वीडियोस ने और हमारे नॉलेज गेट चैनल ने आपको हेल्प किया आपकी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हाँ, संचित सर के मैंने डीबीएमएस के, टीओसी के, डिजिटल के और डिस्क्रिट मैथ के भी वीडियोस देखे हैं। सर के वीडियोस लगभग हर सब्जेक्ट में 100 के आसपास है। ठीक है। और जो कुछ भी एडवांस टॉपिक है टेक्स्ट बुक में जो नहीं मिलता, वो सब संजीत सर के वीडियोस में कवर है। और पीवाई क्यूज क्वेश्चंस भी है, मैंने सारे किए। और मेरा लगभग ये करके डीबीएमएस, टीओसी, डिस्क्रिट मैथ ये सब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है कौशिक आपके साथ में, कि अब जैसे हमारे आने वाले गेट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं जो हाँ गेट की तैयारी करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है अगर कोई सीरियसली गेट की तैयारी करना चाहता है तो उसको संचित सर की कोचिंग में एनरोल करना चाहिए कि नहीं? उसको वो कैसे हेल्प कर सकती है? अगर वो उससे में एनरोल करे तो उसको कैसे हेल्प कर सकता है? हाँ, अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट्स है और उसके पास टाइम भी इनफ है, तो वो कोचिंग में एनरोल कर सकता है। और संजीत सर के वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यहाँ की सर के वीडियोस में सेमिस्टर एग्जाम में भी मार्क्स आ जाते हैं और साइड बाय साइड गेट की भी प्रिपरेशन हो जाती है। ओके, ओके। और संजीत सर के वीडियोस जो कि बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है, उनसे एकदम इन डेप्थ कॉन्सेप्ट मिलता है। जी, जी, बिल्कुल। सो थैंक यू कौशिक, थैंक यू, आपने हमारे साथ अपना अपना टाइम हमें दिया, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द हाँ वेरी बेस्ट टू यू। हेलो माय डियर लर्नर्स, माय नेम इज स्वाति एंड आई एम फ्रॉम केजी गेट कंटेंट टीम। सो आज हम बात करेंगे हमारे कुछ गेट अचीवर्स के साथ जो शेयर करेंगे अपनी गेट प्रिपरेशन जर्नी, और साथ ही वो आने वाले गेट 25 एस्पिरेंट्स के लिए कुछ अपने टिप्स भी शेयर करेंगे। तो आज अपने उसी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्य, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 370, मार्क 67.87 एंड स्कोर 778. So welcome Lakshya, and first of all I would like to congratulate you from the side of the complete student community and the knowledge gate. Okay, Thank you. so let's start. And first of all Lakshya, I would like to know about you. Tell me about yourself, about your schooling and the college. Hello everyone, my name is Laksh. Currently I am 24 years old and I secured All India rank 370. Uh, अभी तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी दिल्ली से ही करी है, 10th 12th आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं। और मैंने कॉलेज भी दिल्ली से ही करा है, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्ट दिल्ली। मैंने अपनी गेट की प्रिपरेशन फाइनल ईयर में स्टार्ट करी थी, बट मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो उतना सीरियस नहीं था। मैं प्लेसमेंट्स की तरफ ज़्यादा चले गया था। बट जॉब करने के बाद मुझे लगा कि मुझे गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए सीरियसली। तो गेट के साथ साथ मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया लास्ट ईयर, और इस ईयर मेरी अच्छी रैंक हुई। ओके, ग्रेट। सो ये आपको क्लैरिटी कैसे मिली लक्ष्य कि आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए? मतलब हाउ यू गेट दिस पॉइंट? लाइक आप तो जॉब भी करने लगे थे, तो आपको जॉब के साथ में ऐसा हाँ क्यों जी। लगा कि हाँ मुझे गेट एग्जाम देना चाहिए?
मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी तो मेरा पैकेज ऑब्वियसली काफी कम था। जॉब स्टार्ट करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो मैंने उसके साथ साथ गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके ओके। तो लक्ष्य, इन सब आपकी इस पूरी जर्नी में संचित सर का क्या रोल रहा? उनकी वीडियोस, उनकी जो कंटेंट था, उसने आपको कैसे हेल्प किया? लास्ट ईयर मैंने एनरोल किया था अनअकैडमी में, और सबसे पहले मैंने संचित सर के कोर्स के थ्रू ही स्टार्ट किया था, कंप्यूटर नेटवर्क्स। उनसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मतलब वो तो सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं और उनके लेक्चर्स भी काफ़ी फन थे, और पीडीएफ वगैरह भी जो प्रोवाइड करते थे वो भी काफ़ी हेल्पफुल थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उनसे ही कंप्लीट करता हूँ सारे सब्जेक्ट्स, और फिर उनसे पढ़ने के बाद तो रिजल्ट अच्छा आ गया मेरा। Okay. So, Lakshay, now telling you about the what next aspirants, like 2025 aspirants जो तैयारी करना चाहते हैं, तो what do you think? अगर वो seriously prepare कर रहे हैं and they want to give this exam, तो उनके लिए संचित सर की videos कितनी recommended आप करोगे? कि मतलब do you think कि हम उन्हें recommend कर सकते हैं? उनकी coaching, संचित सर की coaching recommend कर सकते हैं उन्हें? क्या उन्हें help करेगी? पर्सनली हाँ, Yes. पर्सनली मैंने तो सारे सब्जेक्ट्स उनसे ही पढ़े हैं, तो मैं तो रेकमेंड करना चाहूंगा कि वो सर से ही पढ़ें। बाकी अपने हिसाब से उन्हें टाइम तो देना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए, 1 साल 1.5 साल तो देना पड़ेगा अपनी तरफ से, और हर दिन पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा टाइम, तो आई गेस अच्छी रैंक आ सकती है। Yeah, okay. So thank you, Laksh. Thank you for giving your time and thank you for sharing your thoughts and your like tips to our GATE 2025 achievers, aspirants. So thank you so much and all the very best to you.